السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر میں ویڈیو جو ہے بنانے جا رہا ہوں۔ عورت میرا موضوع اور میرا جو عنوان ہے وہ صرف عورت ہے، جس پر تقریباً جو ہے ملحد نان مسلمز جو ہیں، کفر پر جمع ہونے والے، کفر پر جمنے والے لوگ، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے، دستور کیا ہے، دین کیا ہے، لاز کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں، وہ آج آ کر اسلام پر، ایک ایسے دین پر جو لوگوں کو ایک اچھی زندگی کی طرف گامزن کرتا ہے، اچھی زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اچھی زندگی دیتا ہے، اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ اس دین سے، اس پرنسپل سے، اس دستور سے، اس قانون سے، اس لاز، اصول و ضوابط سے دور ہو جائے جن پر چل کر انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان شیطان صرف انسانوں کا صرف یہی کام ہے کہ ملحد نان مسلمز، یہ جو ملحد ہیں، جو مرتد ہوئے ہیں، ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اسلام سے منتشر کریں، متنفر کریں، اسلام کے اندر انتشار، مسلمانوں میں انتشار پھیلا کر لوگوں کو غلط راستے پر گامزن کریں۔ تو آج ہم نے پیچھے جو ہے یہاں تک پڑھا تھا کہ اگر چاہو تم بدلنا بیوی کی جگہ بیوی اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی کو کسی ایک کو ڈھیروں مال تو نہ واپس لو اس میں سے کچھ بھی، کیا لوگے تم وہ اس مال اس سے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے؟ بھلا کیسے دے سکتے ہو تم اسے واپس جب کہ ہو یکجان ہو چکے تم ایک دوسرے کے ساتھ اور لے چکے ہیں تم سے پھوکایا تھا۔ اس پر میں نے یہاں تک میں نے بیان کیا تھا۔ آگے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آگے ہم آج پڑھتے ہیں کچھ آیتیں، تقریباً میں نے کوٹ کی ہیں سورہ نساء کی تقریباً آیتیں ہیں 3، 4، 5، 6، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 تک پڑھی ہے، باقی رہ گئی 24، 25، 34، 35، 36، 127، 128، 129۔ یہ ہیں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تقریباً آیات ہیں مختلف نمبروں سے، جس میں عورت کی یہ وضاحت بیان کی گئی ہے کہ کیس عورت کے حقوق، اس کے لیے جو حقوق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے حقوق کیا ہیں مرد کے اوپر۔ عورت کے حقوق کی تائید کی گئی ہے جن میں، اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے تقریباً اور یہاں پر 24 نمبر آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور حرام کی گئی ہیں تم پر، میں ذرا پیچھے سے شروع کرتا ہوں، جو آیت نمبر ہے تقریباً 22 کے بعد 23 نمبر، 22 اور 23 نمبر۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَتَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہو تمہارے باپ ان عورتوں سے، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ تھی کھلی بے حیائی اور قابل نفرت کام اور بہت ہی بری راہ۔ یہ بالکل رائٹ ہے اور حق ہے بات کہ اپنے باپ، ہمارے باپ یا والدین جن سے شادی کر چکے ہیں پھر ہم بھی ایسا کوئی کام کریں تو یہ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ ایک فحاشی اور برائی والے کام ہیں۔ حرام کر دی گئی ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وامہاتکم وخالاتکم وبنات
अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम उल्लती अर्ज़क़नाकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाआति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम उल्लती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम उल्लती दख़लतुम बिहिन्ना फ़इल्लम तकूनु दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइला अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल अख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ा इन्नल्लाहा काना गफ़ूरर रहीमा। हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खलाएँ और तुम्हारी भतीजियाँ और तुम्हारी भांजियाँ और वो माएँ जिन्होंने दूध पिलाया तुम्हें, और बहनें तुम्हारी दूध शरीक, और माएँ तुम्हारी बीवियों की, और वो लड़कियाँ जो पल रही हों तुम्हारे घरों में जो औलाद हों तुम्हारी उन बीवियों की जिनसे तुम मुबाशरत कर चुके हो, लेकिन अगर ना की हो मुबाशरत तुमने तो उनसे तो नहीं है गुनाह तुम पर निकाह करने में उनकी लड़कियों से, और बीवियाँ तुम्हारे उन बेटों की जो तुम्हारे सुलभ से हों। और हराम किया गया है ये भी कि जमा करो तो दो बहनों को, मगर जो कुछ हो चुका पहले वो हो चुका, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और हर हालत में रहम करने वाला है। यानी कि इससे ये मुराद है कि वो ये चीज़ें इन लोगों इन दायरे में रहे, इन हवाला से, इन रिश्तेदारों से, लिहाज से ऐसी औरतें जो ऐसे रिश्ते में आती हैं इनसे आप निकाह नहीं कर सकते। निकाह के लिए आपसे का जो है कतई तौर पर मना कर दिया गया है। हराम का मतलब नहीं है, जिस चीज़ से आपको मना कर दिया वो हराम है। वल मुहसनातु मिनन निसाई हराम की गई हैं इल्ला मा मलकत अयमानुकुम तुम पर शोहर वाली औरतें, मगर वो जो मलकत अयमानुकुम जंग में कैद होकर हाथ आए तुम्हारे। किताबु ये कानून है, किताबुल्लाहि अलैकुम ये कानून है अल्लाह का, लाजिम है जिसकी पाबंदी तुम पर। वहिल्ला और हलाल हैं लकुम मवरा ज़ालिकुम तुम्हारी वो औरतें जो अलावा हैं उनके। अन तब तबू भी अम्वालिकुम इस तरह के हासिल करो तुम उनको अपने माल खर्च करके, निकाह यानी निकाह करके, मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन कैद में लाने के लिए, ना के बदकारी की खातिर। यहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया कैद में लाने के लिए, यानी यहाँ पर कैद में लाने के लिए ना के बदकारी की खातिर, साथ ही फरमा दिया कि ना के बदकारी की खातिर, यानी कि निकाह के लिए है। ये इस तरह नहीं है कि आप जिस तरह चाहे लौंडियों से या कनीज़ों से कर सकते हैं। नो नेवर। अल्लाह तबारक व तआला की जो किताब है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोक रही है। तो कैसे हो सकता है जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला मना कर रहा है उन कामों को करने के लिए अल्लाह ताला इजाज़त दे दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को समझने में गलती लगी है। जो भी लौंडियाँ या कनीज़ें जंगों के अंदर कैद होकर आती हैं उनसे भी निकाह के बगैर आप जो है वो जिनसी तल्कात नहीं रख सकते। और जो भी ऐसा कहता है वो गलत कहता है, उसने अपने ही अपने खुद से ही इस्तेलाल कर दिया। ऐसे ही जैसे कुरान पाक में आए कि तुम्हारे सुना नहीं सुनते मुर्दे, और इससे कुछ लोग कहें कि ये वो मुर्दे नहीं हैं, मुर्दे सुनते हैं। इस्तेलाल अपनी ही तरफ से, यानी कि तफसीर में बताया कि ये वो मुर्दे नहीं हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाया मुर्दे नहीं सुनते। ये मुर्दे वो काफिर जिंदा को कह रहा है अल्लाह ताला, ये मुर्दा को नहीं कह रहा, क्योंकि मुर्दे इन उलमा के मुताबिक सुनते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के ने वाज़ेह फरमाया है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले जो है याद रखनी चाहिए इंसानों को। और जो ना रखता हो तुम में से कुदरत इस बात की निकाह कर सके आज़ाद मोमिन औरतों से, तो वो निकाह करे उनसे जो तुम्हारी मिल्क में हों, कनीज़ें ईमान वाली
और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे ईमान का हाल। तुम सब एक दूसरे में से हो, सो निकाह करो उन कनीज़ों से इजाज़त से उनके मालकों की, और अदा करो उन्हें उनके महर दस्तूर के मुताबिक, ताकि वो कैद निकाह में महफूज रहने वालियाँ हों, ना बदकारी करने वालियाँ, ना चोरी छुपे याराना करने वालियाँ, याराना गांठने वालियाँ। और बिल्कुल ये एक वाज़िया रास्ता है दोनों मर्द और दोनों के लिए, ताकि इसमें तबाही और बर्बादी ना, क्योंकि इंसान वो मखलूक है जो गैर फितरी रास्ते को अपनाता है, जो जिस रास्ते को जानवर भी नहीं अपनाते। आप जानवर को देखो, उनमें भी एक असूल और ज़वाब्त और कानून और लाज है, लेकिन इंसान वो है जो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, अपनी मर्जी से गैर फितरी अमल को अपनाना चाहता है। इसी से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, क्योंकि इंसान की जो फितरत है, जिस फितरत पे बनाया गया है उसी फितरत पे रहना चाहिए। उस आदत से, उस फितरत से, उस कानून से हटकर काम नहीं करना चाहिए। अगर आप उस फितरत से, उस कानून से हटकर काम करेंगे तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। दैट्स ऑल राइट। यही सब कुछ सही है, और ये अल्लाह ताला की जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं, ये क्योंकि ये सुपर नेचुरल बीइंग पावर जो सुपर नेचुरल बीइंग है उसकी तरफ से ये किताब नाज़िल हुई है। यूं ही किताब नाज़िल नहीं हो गई, और जो भी कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है वो गलत लोग हैं, सिवाय बुराई और फाहशी और बेहयाई के वो कुछ भी नहीं चाहते। तो अल्लाह तबारक ताला जो है यूं ही किसी को गलत कानून के खिलाफ बात, अल्लाह ताला अकल के खिलाफ बात हमेशा नहीं करता है, और जो भी ऐसा समझते हैं, जो भी ऐसा कहते हैं, वो गलत सोचते हैं, उनकी सोच ही गलत है। अब 34 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई, मर्द सरपरस्त निगहबान है औरतों के। मर्द सरपरस्त व निगहबान है औरतों के। यहाँ पे निगहबानी, निगहदाश्त, हिफाजत, केयर करना है औरतों की। मर्द जो हैं, जो जेंट्स हैं, जो बॉयज हैं या मैन हैं, उनका ये काम है कि वो औरतों की, वो मेंस की या गर्ल्स की जो है केयर करें, निगहदाश्त करें, हिफाजत करें, सेफ्टी रखें, ना कि अपनी मन मर्जी से जिस तरफ चाहे, जिसको चाहे तंग करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सरपरस्त कहा गया कि ये निगहबान हैं, सरपरस्त हैं, और इसका मतलब गलत नहीं है। अफसर अगर अल्लाह ताला ने कहा, ये यहाँ पे सरपरस्त अफसर, मर्द अफसर हैं, हम मर्द अफसर रो निगहबान हैं। अफसर वही होता है जो निगहबानी करता है। अफसर जो ऑफिसर जो है कौन होता है? जो वजीर आजम बनता है वो भी एक ऑफिसर है, जो एक सदर बनता है वो भी एक ऑफिसर है। वो किस लिए बनाया जाता है? ताकि वो देखभाल करे, ताकि वो निगहदाश्त करे, निगहबानी करे अवाम की। इसी तरह मर्द औरत पर सरपरस्त और निगहबान है, ताकि ये औरत की निगहबानी और निगहदाश्त करे, केयर करे। इसका मतलब गलत निकालना, जैसे मुल्हिद लोग, नॉन मुस्लिम्स लोग जो हैं, इसका मतलब गलत निकाल के अपनी मर्जी से इस्तेलाल करके लोगों को इस्लाम के रास्ते से मुंतशिर कर रहे हैं और मुसलमानों में ये इंतशार फैला रहे हैं और लोगों को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, बेसमझे, बे इल्म के, बगैर इल्म के, बेसमझे, बगैर समझे और बगैर इल्म के लोग गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। लोग भी ऐसे लोगों की बातों में आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है, दीन किस चीज़ को कहा जाता है, कानून किस चीज़ को कहा जाता है, फितरत किस चीज़ का नाम है, आदत किस चीज़ का नाम है, हालत किस चीज़ का नाम है, इनको पता ही नहीं है। और यूं ही उठकर सोशल मीडिया के ऊपर आकर वीडियो बनाकर यूं ही बातें करना शुरू कर दी। इनको पता ही नहीं है। लिहाजा इन लोगों की बातों से बचना चाहिए हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी भी जुबान की कौम से तल्लक रखता है, चाहे वो हिंदी जुबान की कौम से तल्लक रखता है, चाहे वो इंग्लिश
कौम की ज़ुबान से तल्लुक़ रखता है, किसी भी ज़ुबान की कौम से तल्लुक़ रखता है, उनको ऐसे इंसानों से बचना चाहिए जो सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं और ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और हालांकि ये कहते हैं कि ये हम तो इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन यही लोग हैं फितना फसाद फैलाने वाले, लेकिन ये जानते नहीं हैं, ये अपने आप को सही समझ रहे हैं, लेकिन है ये गलत। इस बिना पर फजीलत दी अल्लाह ने इंसानों में बाद पर, और इस बिना पर खर्च करते हैं मर्द अपना माल, बस नेक औरतें होती हैं अताअत शाह हिफाजत करने वाली मर्दों की गैर हाजिरी में उन सब चीज़ों की जिनको महफूज बनाया है अल्लाह ने, और वो औरतें के अंदेशा हो तुमको नाफरमानी का जिन से। ये वो नाफरमानी है जो एक बुराई और फहाशी जिसको कहा जाए, उस बुराई के मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया है। ये आम तौर पे जो होती है घरेलू मामला, उसमें नहीं है। ये जो बुराई, बेहयाई और फहाशी अगर हम अपनी औरतों के अंदर उनको सुने, ये एक बुरा रास्ता है, एक गैर फितरी रास्ता है, गैर फितरी अमल है, गैर कुदरती गैर फितरती अमल जो है उसको रोकना चाहिए। सो नसीहत करो उनको, अगर ना माने तो तनहा छोड़ दो उनको बिस्तरों में, और फिर भी ना माने तो मारो उनको। ये मारने से भी उनको गलत रास्ते से रोकना है। एक इंसान, एक चाहे वो औरत ही है, अगर वो खुदकुशी कर रही है तो क्या हमें उसे रोकना नहीं? अगर वो नहीं रुकती तो उसको मार कर रोकें, उसको जिस तरह चाहे रोकें। अगर वो आग में कूदना चाहती है, अगर वो अपनी बर्बादी की तरफ उस रास्ते पर चल रही, जिस रास्ते पर चल, उसको सिर्फ बर्बादी के अलावा, तबाही के अलावा कुछ नहीं हाथ में आना, तो ऐसे रास्ते से उसको बाज रखना जो है, ये एक मोहब्बत है, ये एक भाईचारा है, ये एक अखुवत है। और जो इस्लाम समझा रहा है, इस्लाम में है, इस्लाम है ही इस चीज़ का नाम, खैरियत का नाम, और कानूनों ज़वाबत का नाम, असूल व ज़वाबत का नाम, प्रिंसिपल्स का नाम, लॉज कानून का नाम इस्लाम है। इस्लाम जो है किसी गैर फितरी अमल का नाम नहीं है, गैर फितरी समझ का नाम नहीं है, गैर फितरी इल्म का नाम नहीं है। इस्लाम एक फितरी इल्म का नाम है। फिर अगर अतात करने लगे वो तुम्हारी, तो ना तलाश करो उन पर ज्यादती करने की राह। अब अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है, अगर वो आपकी इताअत करने लगती हैं, आपका कहना मानने लगती हैं, तो फिर उन पर ज्यादती करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए, कोई बहाना, कोई खामी नहीं ढूंढनी चाहिए। बेशक अल्लाह है सबसे बाला तर और बहुत बड़ा। अल्लाह ताला ने हर जितनी आयत मैंने पढ़ी हैं, हर आयत में अल्लाह ताला ने औरत के ही हक की बात की है, औरत की ही पासदारी की है, औरत के हक की पासदारी की है, औरत के हक की तायीद की है, औरत के हक को ही उजागर किया है। ये नहीं कि सिर्फ मर्द, और सबसे ज़्यादा मर्द से ज़्यादा औरत के हक को उजागर किया गया है, क्योंकि औरत एक जो है एक ऐसा इंसान है जो जो है क्या कहते हैं कि जिसकी निगहबानी के बगैर, जिसको सही तौर पर मोहब्बत से, अखुवत से, प्यार से समझाया जा सकता है, और प्यार से और मोहब्बत से, अखुवत से वो सही रास्ते पर आ सकती है, ना कि जुल्म और ज्यादती से। और ज्यादती की राह कोई कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुरान पाक की बेशुमार, सूरह निसा की बेशुमार आयात हैं, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तकरीबन जो है 34 नंबर आयत तक आपको, 34 नंबर आयत, 29 नंबर आयत से 22 नंबर आयत से लेकर 29 नंबर 34 नंबर आयत तक पढ़ा है मैंने। तो इस तक ही तकरीबन 19 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो इस पर अगर पूरी आयत पढ़ूँ तो ये तकरीबन घंटों पर मबनी बयान होगा। तो आप इस बात को देख सकते हैं कि कैसे अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की तरफ बुला रही है। वो कुदरतों की मालिक, वो पाक ज़ात सिर्फ अच्छाइयों की तरफ बुला रही, बुराइयों की तरफ नहीं बुला रही है। आगे आ जाते हैं। अब एक और आयत है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू
बंदगी करो अल्लाह की और ना शरीक ठहराओ बनाओ उसका किसी को ज़रा भी शैयन, किसी चीज़ को ज़रा भी, ज़रे को भी उसका शरीक नहीं बनाना। वबिल वालिदैन एहसानम, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वाबिज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ करीबी, जो आपके लोग हैं, जो सबसे करीब इंसान हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो करीब तर इंसान होते हैं, उनसे भी अच्छा सलूक करने का अल्लाह ताला ने फरमाया है। वल यतामा, और यतीमों, वल मसाकीन, और मस्कीनों, वल जारि ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदार हमसायों, वल जारिल जुनुबी, बेगाना हमसायों, वस्साहिबी बिल जुनबी, पास के उठने बैठने वालों, वब्निस सबील, मुसाफिरों, मलाकत ऐमानुकुम, अपनी लोंडी गुलामों के साथ भी हुस्न सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता, मन काना, जो हों, उन लोगों को जो हों, मन काना, जो हों, मुख्तालन फखूरा, मगरूर और शेखी बगाड़ने वाले, इतराने वाले, जैसे ये मुल्हिद लोग हैं, जैसे ये नॉन मुस्लिम लोग हैं। ये इस्लाम में मुसलमानों में भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन जो ऐसा काम करते हैं वो उनको यानी वो उनको अपने ईमान को सही करने की ज़रूरत है, उनको अपने जो कुरान को समझने, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। इस्लाम जो है सिर्फ और सिर्फ अमन चाहता है इंसानों के अंदर, इसलिए इस्लाम है अमन बर्पा करने के लिए, ना कि फितना और फसाद खून रेज़ी फैलाने के लिए। तो देखेंगे आप हमसायों के साथ, बेगाने हमसायों के साथ भी आपको अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया। लोंडी गुलाम जो भी हैं, इन सब के साथ आपको अल्लाह ताला ने जो है अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। और जो भी, और यानी कि अल्लाह ताला नहीं पसंद करता उन लोगों को जो हों इतराने वाले लोग, जो लोग दूसरों को हक़ारत की नज़र से देखते हैं, खुद को बढ़तर समझते हैं और दूसरे लोगों को हक़ारत हकीर समझते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐसे लोगों को बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता, उन लोगों को जो हों मगरूर और शेही बगाड़ने वाले, गरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले, दूसरों को हकीर समझने वाले और हक़ारत करने वाले। अल्लाज़ीना यबख़लूना व यामुरून, जो बुग़्ल करते हैं और तरगीब देते हैं, व यामुरून नासा बिल बुख़्ली, लोगों को बुग़्ल की, व यक्तुमूना, और छुपाते हैं उसको, उसको अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, दिया है उनको अल्लाह ने अपने फजल से, जो वाददना, और तैयार कर रखा है हमने, लिल काफ़िरीना, ऐसे नाशुकरों के लिए, अज़ाब मुहीना, रुस्वा कुन अज़ाब। यानी कि हमने वो लोग जो बुग़्ल करते हैं, तरगीब देते हैं लोगों को बुग़्ल की और छुपाते हैं उसको, जो उनको अल्लाह ने अपने फजल से दिया है, तैयार कर रखा है हमने, ऐसे ही नाशुकरों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब। जो लोग अच्छे काम नहीं करते, जो लोगों को अच्छे नज़रों से नहीं देखते, अखलाक की नज़रों से नहीं देखते, अच्छे रवैये से नहीं देखते, अच्छा रवैया नहीं अपनाते, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया गया है। और यही ऐसे लोगों के बारे में गुस्सा करना भी जायज़ है, इन लोगों को मारना पीटना भी जायज़ है, इन लोगों को सही रास्ते पर भी लाना जायज़ है। और जो भी लोग ऐसा नहीं चाहते वो मुल्हिदों की तरह ही हैं, जैसे हारिस सुल्तान, अली मलिक, सादी हमीद और गालिब कमाल, जो लोग हैं यही लोग हैं जो लोगों को भी, खुद भी बुग़्ल करते हैं और लोगों को भी बुग़्ल की तरफ बुलाते हैं, बुग़्ल करने को कहते हैं, और छुपाते हैं अल्लाह ताला की हक बात को, और ये हक बात को छुपाते हैं और गलत तासर, गलत चीज़ें, गलत इस्तेलाल, गलत मानी निकाल कर लोगों को बतला रहे हैं, लोगों को इस्लाम से फुसला रहे हैं, लोगों को इस्लाम से, कानून से, ज़वाबित से, असूलों से, प्रिंसिपल से दूर कर रहे हैं, ताकि लोग तबाही और बर्बादी में आ जाएं, फाशी और बुराई में आ जाएं। तो ये भी मेरी जो वीडियो है, ये पिछली वीडियो का एक हिस्सा है। इंशाअल्लाह मैं इससे आगे भी औरत के ऊपर ही मैं इंशाअल्लाह वीडियो फिर बनाऊंगा। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने